دساتی نے مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بہت خوشخبری کی بات ہے اور بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک دیوبندی نے اعلان کیا کہ آؤ کون بریلوی ہے جو علماء دیوبند پر اعتراض کرتا ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں شفیع بھائی، انہوں نے مجھے کال کیا کہ نور حسن بھائی، ایک دیوبندی نے اس طرح کا اعلان کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی بریلوی کو علماء دیوبند پر کوئی اعتراض ہو تو مجھے بتائے، میں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میری بات کرائیے، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے اس بندے سے بات کی اور میں نے اپنا اعتراض رکھا۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پورے کلپ کو باغور سنیے گا کہ کیا اس نے کہیں سے کہیں ایک بھی کوئی جواب دیا۔ جس بات کا اعتراض میں نے کیا وہی اس نے کر کے دکھایا۔ میں نے اعتراض کیا کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ علماء دیوبند جس بات کا انکار نبی ولی کے لیے کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کے لیے کرتے ہیں، وہی ساری باتیں، وہی سارے کمال اپنے گھر کے بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میرا اعتراض تھا۔ بہرحال خیر، بات لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس کو باغور سنیں، اور جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو ہمارے بھائی اس چینل پر پرانے ہیں وہ میری سپورٹ کریں۔ بھائی آپ حضرات ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیا کریں سن کے، تاکہ ہمارے اور بھائیوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ آپ ہماری سپورٹ کریں، مجھے معلوم ہے الحمدللہ میری بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے سنی بھائی، تو یہ کام ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سنی بھائی کے پاس میری بات پہنچ جائے، گفتگو پہنچ جائے، تاکہ میرے نبی کا گستاخ نہ بنے۔ جو وہابی دیوبندی جو گستاخ رسول ہیں ان سے آدمی بچ جائے۔ وہابی دیوبندی بدمذہب گمراہ لوگ جو ہیں ہمارے سنی مسلمانوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بآسانی گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو بہکا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں محنت کرتا ہوں، سمجھے بھائی؟ تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، میری ہیلپ کیجئے، تاکہ ہمارے ان عام بھائیوں تک بات پہنچ جائے جو بیچارے علم سے کورے ہیں، علم سے انجان ہیں، ہے نا، دیوبندی وہابی کے عقیدے سے واقف نہیں ہیں کہ ان دیوبندیوں کا سڑا ہوا بدبودار عقیدہ کیا ہے۔ خیر سنیں آپ اس پوری گفتگو کو کہ اس دیوبندی عالم نے کیا سے کیا کر دیا۔ پھر بعد میں عشاء بعد میری اس سے بات ہوئی، مغرب کی اذان ہو گئی تھی، میں نے کال کٹ کر دیا، پھر بات ہوئی، پھر یہ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ بہرحال حالت یہ ہوئی کہ یہ کال کاٹ کے بھاگ گیا، اس کی حالت یہ ہوئی کہ کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ پھر میں نے اس کو کال کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مفتی اقبال ہیں؟ تو بولے ہاں، میں پڑھا رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بعد میں بات کریے گا۔ خیر سنیے آپ اس گفتگو کو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے حسن بھائی؟ جی بڑھیا الحمدللہ۔ اور کیا کر رہے ہو اس وقت؟ جی آفس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک فون آیا تھا کل ایک دیوبندی کا، اچھا اور راجستھان کا ہے کو مولوی، اچھا کہ تمہارا کوئی اعتراض ہو دیوبند کو تو مجھے فون کرے، میں جواب دوں گا۔ اچھا میں نے کہا ہاں، میں نے خیر اس سے بات تو کوئی نہیں کی، میں نے کہا میں آپ کو بھی فون نہیں کر رہا، میں آپ کو جب چاہوں گا جب کر لوں گا۔ اچھا تو کل رات کی بات ہے، میں نے مجھے بتایا کہ حسن بھائی اس وقت بات نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں، تو آپ لے لو لائن پہ اسے۔ آپ میں ابھی لے رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with. तो सिंगर आपके नाम है या काय के नाम सिंगर? हेलो ठीक। हेलो हाँ हेलो। जी मिस्टर भाई से बात करें आप? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ शेर खान भाई। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? हाँ कर लो, वो सिम के ताल्लुक से कर रहे हैं कुछ। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही उधर से हजरत। इकबाल भाई, इकबाल जी हेलो, बोले जी कहाँ से हैं? जी कहाँ से हैं आप? मैं हाथिया। हैं? मैं हाथिया। हाथिया? जी। ये कहाँ पड़ेगा? आप कौन है? जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। कहाँ से? यूपी रामपुर। अच्छा जी बोलिए। आप भी यूपी से हैं? जी। अच्छा अच्छा, किस मसलक से हैं? मैं मसलक देवबंद से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ वो अभी इनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि आप कह रहे थे कि अगर उलमाए देवबंद पर आपका कोई एतराज हो तो बताइएगा, मैं जवाब दूंगा, आपने बोला था। जी। अच्छा, मुझे कुछ एतराज है थोड़ा। क्या एतराज है? एतराज ये है कि उलमाए देवबंद जिन बातों का इनकार अंबिया इकराम औलिया इकराम के ताल्लुक से करते हैं, जी, वही सारे काम, ठीक है, अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम कर लेते हैं। अच्छा जिन बातों का इनकार अंबिया औलिया के लिए करेंगे, जी, वही अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम कर लेंगे। अच्छा बताओ। जी बताओ। जैसे इल्मे गैब हुआ, जैसे औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, कहते हैं कि कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी, इसको उलमाए देवबंद ही कहते हैं या आप भी कहते हैं, ये बताओ। क्या चीज? इसको लड़की माँ के पेट के अंदर क्या है, लड़का है लड़की है, इसको देवबंद वाले ही कहते हैं या आप भी कहते हैं, ये बताओ। देखिए हमारा मानना तो ये है कि आपका अकीदा क्या है ये बताओ मुझे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का भी इल्म है कि इस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का। इस बात का इल्म अल्लाह ताला ने अपने हबीब को, अपने महबूब को अता किया है। ठीक, ये आपका अकीदा है? हाँ हाँ। आपका अकीदा है? हाँ हाँ। अब वो दूसरे साहब जो फोन कर रहे थे, जिस बात कराई थी, वो कौन साहब है? अच्छा, आपका अकीदा क्या है वैसे, इसके खिलाफ है या क्या है? अभी मैं बताऊंगा। वो पहले वो जो फोन कर रहे हैं उन्हें भी तो बात का पता चलना चाहिए ना कि भाई क्या है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैंने सुना था कि आपने कहा था कि कोई उलमाए देवबंद पर एतराज करो, मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी। अभी भी, लेकिन जो फोन पे जिसने फोन किया है वो फोन पे ऑनलाइन है या हाँ हाँ ऑनलाइन है, वो फोन पर है। तो ये साहब कौन है, एक बार इनका तारुफ तो कराओ। भाई इनको तो आप जानते होंगे, आपकी इनसे बातें हो रही हैं, आप कह रहे हो कि उलमाए देवबंद को अगर किसी को एतराज हो उलमाए देवबंद पर तो मैं जवाब दूंगा। तो आपकी उनसे बात हो रही थी ना पहले से। करा रहा हूँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये मालूम कर रहा हूँ कि ये साहब कौन है, मुझे ये तो पता लगे कि अभी ये सुन रहे हैं मेरी बात को। यहाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं जिला हरिद्वार से हूँ, मेरा नाम कारी शफी रजा है। जी, मेरा नाम कारी शफी रजा है, मैं हरिद्वार से हूँ, गुजर बस्ती का निवासी। अब मेरी बात सुन लो। आपका अकीदा दोनों का ये है कि अल्लाह ने इसका भी इल्म अल्लाह के रसूल के लिए दिया था कि माँ के पेट के अंदर क्या है, ठीक है?
हाँ, अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। आपका अकीदा है ना? चलिए है हमारा अकीदा, मान लीजिए। आपका अकीदा हजरत कुरान के खिलाफ हुआ। अच्छा, जैसे इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, माशाअल्लाह, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। यहाँ क्या कहा अल्लाह ने? इन्नल्लाह, सिर्फ अल्लाह। यहाँ इन्नल्लाह व रसूलुहु का क्यों नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं? कुरान में ये लफ्ज है ना, सिर्फ अल्लाह जानते हैं। माशाअल्लाह। तो आपका अकीदा ये कुरान के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अगर कुरान के खिलाफ हुआ तो फिर हमारे ऊपर हुक्म क्या लगेगा? मैं देखो, मैं आपके लिए हुक्म नहीं लगा रहा, मैं अपनी जबान से जो है आपके लिए कोई कुफ्र का और ये सब हुक्म नहीं लगाता। वो तो जो है आप जाने, आपका काम जाने। तो फिर जब हम कुरान, भाईजान आपकी बात हो गई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। आपने कुरान की आयत पढ़ के बताई और हम इस हिसाब से कुरान के खिलाफ निकले। तो जो कुरान के खिलाफ अकीदा रखता है वो मुसलमान ही रहता है या काफिर हो जाता है? देखो, मैं इस बात को जो है दारुल इफ्ता से रुजू कर जो है इसका आप फतवा नहीं, तो ये आधी अधूरी बात, ये आपकी आधी अधूरी बात। ये फिर जो आप दावा कर रहे थे कि किसी को अगर कोई एतराज हो तो एतराज करे, मैं जवाब दूंगा, फिर आप उस काबिल नहीं हैं। ऐसा करो, पहले आप पढ़ लिख लो, उसके बाद आओ। अब मेरी बात सुनो, ये दावे मत करो कि मैं जवाब दूंगा उलमाए देवबंद की तरफ से। फोन क्यों काट रहे हो भाई? हम नहीं काट रहे फोन। जब आपको ये पता चल गया कि हमारा अकीदा कुरान के खिलाफ है, तो इस हुक्म को मेरे लगाने के बजाय खुद अपने ऊपर आप ही हुक्म लगाओ ना कि हमारा क्या हुक्म होगा। भाई देखिए, आपने कुरान से साबित किया है तो हुक्म भी आप ही लगाएंगे। मैं कोई बात अगर साबित करूंगा तो मैं बताऊंगा। अब चलिए एक चीज और अब आपको पता नहीं है कि कुरान के खिलाफ अगर कोई अकीदा रखता है तो उसका हुक्म क्या है? नहीं भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता। आप जो है मुनाजरा कैसे करोगे? और आपको जो है ये पता नहीं कि कुरान और कुरान के खिलाफ अकीदा रखने पर जो है अल्लाह के यहाँ से क्या फैसला है, तो फिर आप आगे क्या बात करोगे हमसे? ये तो बताओ भाई। आपके एतबार से आपने जो सवाल किया है, यहाँ आपके एतबार से आपका अकीदा कुरान के खिलाफ है, तो फिर अभी इसका हुक्म जो है आप खुद ही सोचो ना कि मैं कुरान के खिलाफ अकीदा रखता हूँ तो मेरा हुक्म क्या होगा? अच्छा, तो फिर क्या होगा आप बता दीजिए ना। आप बता दीजिए ना, मैं आपकी बात मानूंगा ना जो आप कहेंगे। अच्छा, मेरी बात मानोगे, कुरान की बात नहीं मानोगे? अरे भाई, कुरान ही की बात मान रहे हैं हमने, तो पहले ही कह दिया। सुनिए। अच्छा एक मिनट, हमने पहले ही क्या कहा कि अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म आता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से। ठीक है, हमने अल्लाह की अता शामिल कर दी। और आप कह रहे, एक मिनट देखो। हाँ जी, सुनिए, हमारी बात भी सुनिए। कारी इकबाल साहब, मौलाना इकबाल साहब, हम आपकी बात को बड़े प्यार और मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक मेरी बात सुनो। देखो, आप घबरा से गए हो, घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहा। मेरी एक बात सुनो, हमारी जो बातें हो रही है सिर्फ एक दीनी एतबार से हो रही है, हमारी कोई इनाद और ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जो है नहीं होना। हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं है, कोई जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही जी। अच्छा, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात लगी आपको जैसे मैंने आपको कोई गलत बात बोली हो? नहीं ना, मुझे नहीं लगा कि आप इंशाल्लाह गलत कह रहे। आगे भी नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मेरी तरफ से आपको जो है कोई ऐसा कि भाई मैंने तो आपसे ये काम है, हुक्म नहीं लगा था भाई, अब आप खुद देख लोगे। नहीं भाई, देखिए। हाँ जी। आपका ये दावा है कि अगर उलमाए देवबंद पर कोई एतराज करने वाला हो तो हमसे बात करे, मैं जवाब दूंगा, यही कहना है ना आपका? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। पहले इस बात को तो हाँ ना कर दो, जो मैंने सुना मैंने उस पर आपसे बात करना शुरू की। बिल्कुल यही है ना। तो फिर आप जैसे आपने कहा कि भाई आपका अकीदा कुरान के खिलाफ है और आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, तो जो कुरान पाक के खिलाफ अकीदा रखता है, मैं कह रहा हूँ इस बात को या कुरान कह रहा है इस बात को? मेरी बात को मत मानो आप। तो फिर कुरान का फैसला भी तो आप, मैं कह रहा हूँ जनाब इकबाल साहब, कुरान का फैसला भी तो आप सुनाएंगे ना कि कुरान के खिलाफ चलने वाला कौन होता है, काफिर या मुसलमान?
मैंने आपको जो यूं कहा है कि भाई आपका अकीदा कुरान के खिलाफ है, तो अच्छा। मैंने नहीं कहा ये, बल्कि ये कुरान कह रहा है। जैसे मैंने आपसे पहले मालूम किया कि आपका अकीदा अच्छा तो तो आपने अच्छा बताया कि मेरा अकीदा ये है, तो चलिए, कुरान की आयत तो ये है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताइए भाई, मतलब क्या नाम है आपका? कारी इकबाल साहब, मौलाना इकबाल साहब। तो मेरा अकीदा जब कुरान के खिलाफ है तो फिर पता ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म नहीं कि औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का। जी 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 यही आया ना? जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर हुजूर इस बात का इल्म नहीं रखते, अल्लाह ताला ने हुजूर को इस बात का इल्म नहीं दिया, नहीं अता किया, जी। तो फिर क्या हुजूर के अलावा कोई दूसरा नबी इस बात का इल्म रखता है, या हुजूर के उम्मतियों में से कोई सहाबी, हुजूर का कोई उम्मती अब से लेके कयामत तक, या हुजूर के जमाने में, हुजूर के विसाल के बाद किसी को ये इल्म अल्लाह ताला ने अता किया? नहीं, किसी को अता नहीं किया। किसी को अता नहीं किया। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपसे। जब हुजूर को अता नहीं किया तो किसी को अता नहीं किया। जी और नहीं किया तो अब ये दलील हो गई और ये अटल फैसला हो गया, जब हुजूर नहीं जानते तो कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह ताला ये इल्म किसी को अता करता तो अपने हबीब को अता करता। अब इसके अलावा मैं अपनी बात कहने लगूं, मैं कहने लगूं कि मेरे गौसे आजम ये जानते हैं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का है, तो अब मैं खिलाफ हुआ, अब मैं खिलाफ हुआ कुरान के। और कुरान के खिलाफ चलने वाला काफिर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना? कुरान के खिलाफ चलने वाला, कुरान की मुखालफत करने वाला, है ना, काफिर है कि नहीं? देखो, मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात को समझ लीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे बात होगी। जी जी चलो आप कुरान के खिलाफ अकीदा रखने वाला मुसलमान है या काफिर है? जी जनाब इकबाल साहब, मुझसे पूछ रहे हैं या मैं खामोश रहूं? हाँ, नहीं, आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये इल्म अता नहीं किया तो किसी को भी नहीं किया, मगर मैं अपना अकीदा मान रहा हूँ कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ताला ने, मतलब हुजूर गौसे आजम ये जानते हैं कि किस औरत के पेट में ये लड़की है या लड़का है, या ख्वाजा गरीब नवाज जानते हैं कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की है, तो ये मेरा अकीदा कुरान के खिलाफ हुआ। अब ये कुरान के खिलाफ हुआ तो फिर कुरान के खिलाफ अकीदा रखने वाला काफिर हुआ। हाँ, कुरान के खिलाफ अकीदा रखने वाला काफिर है ना? खुल्ला देखिए, आप डरिए मत बिल्कुल भी, जब मैं नहीं डर रहा हूँ कहते हुए, तो आप भी मत डरिए। हाँ बताओ। काफिर हुआ ना? हाँ बोलो। तो अब ये हुक्म मैं सिर्फ गौसे आजम के लिए मानूं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी मानूं, तो सिर्फ मैं ही काफिर होऊंगा, या मेरे अलावा कोई और भी किसी के लिए मानने वाला ये अकीदा कि फला बुजुर्ग ये जानते हैं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का, वो भी काफिर होगा? नहीं, कुरान का हुक्म तो सबके लिए बराबर होता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, मजा आ गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह। आप किसी एक तरफ नहीं हैं, माशाल्लाह, आप हक की बात कर रहे हैं। तो ये एक किताब है हमारे पास, हिकायत औलिया, और इस किताब में लिखा है कि अब्दुल्ला खान राजपूत जो देवबंदियों के बुजुर्ग हैं, उनके यहाँ जब कोई तावीज लेने जाता तो वो बता दिया करते थे, जा तुझे लड़की होगी या लड़का। अच्छा जी, किताब का नाम है हिकायत औलिया, लिखने वाले हैं मौलाना अशरफ थानवी साहब। जा तुझे लड़की होगी या लड़का? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब बताओ। हैं? बताओ बताओ, अब इसके पे क्या है? देखिए, अदब से बात कर रहे हैं तो अदब से ही बात करिए। ये बता मत कीजिए, मैं आपको बता नहीं कर रहा हूँ, बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बदतमीजी करेंगे तो आप मुझे जानते नहीं ठीक तरीके से। दुनिया देवबंदियत में इस गुनाहगार के नाम की दहशत है खाली मेरा नाम बोल देना दारुल देवबंद में। आप मुझे जानते नहीं हो, मैं आपसे बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, तो आप प्यार से बात करें तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुनो जी, मैं आपसे जो है प्यार से बात कर रहा हूँ। हाँ, प्यार से ही बात कीजिए कि तू तो करोगे तो फिर आप मुझे जानते नहीं हो। ये तो मेरी जबान है। रही बात ये नहीं भाई, तुम्हारी जबान फिर मेरे पास भी जबान है ना, तुम्हारी जबान तो है ही है, मेरे पास जबान नहीं है। अगर आप यूं धमकी दे रहे हो तो आप मुझे ये बताइए जनाब, जी जनाब, अब मुझे ये बताइए जनाब
जब अल्लाह ताला ने हुजूर को वो इल्म अता नहीं किया तो देवबंदियों के बुजुर्ग अब्दुल्ला खान राजपूत को कैसे ये इल्म अता कर दिया? बस इसका जवाब दीजिए। मौलाना अशरफ थानवी ये अकीदा अब्दुल्ला खान राजपूत के लिए तस्लीम करते हुए काफिर हो गए कि नहीं? अब मेरी बात सुनो। नहीं, पहले हमारी इस बात का जवाब दें आप। जवाब दूंगा, तसल्ली से जवाब दे रहा हूँ मैं। चलिए दीजिए। आप मेरे जवाब को बहुत अच्छे से गौर से सुनना। जी। मैंने जो कल जो ये कहा था ना कि उलमा देवबंद की तरफ से जो है मैं तर्जुमान हूँ जी, तो मैंने उसमें ये बात भी लिखी थी कि उलमा देवबंद की इबारत को समझने के लिए इल्म और अक्ल सलीम होना जरूरी है। ये भी बात लिखी थी मैंने उसमें। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपके लिए। आप क्या फरमा रहे थे, दोबारा फरमाओ। मैंने आपसे ये कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म अता किया कि नहीं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का। आपने कहा कि ये इल्म हुजूर को नहीं मालूम, ये हुजूर नहीं जानते कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का है। तो मैंने फिर आपसे पूछा कि जब हुजूर ही नहीं जानते तो फिर कायनात में कोई नहीं जानता, यानी हुजूर के सहाबा भी नहीं जानते, कोई नबी भी नहीं जानता, कोई वली भी नहीं जानता, है ना? आपने कहा हाँ कोई नहीं जानता, यही कहा? जी यही कहा था ना, कोई नहीं जानता? नहीं, बिल्कुल सही है, मैंने कहा। अगर कोई ये कहे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ये जानते हैं कि वो फला औरत के पेट में लड़की है लड़का है, या गौसे आजम जानते हैं कि फला औरत के पेट में लड़की है लड़का है, तो ये बात कुरान के खिलाफ है और कुरान के खिलाफ अकीदा रखने वाला काफिर है। आपने ये कहा था ना? जी। इसी तराजू में मौलाना अशरफ थानवी साहब को तोलते हुए आप उन पर हुक्म लगाइए कि उन्होंने जो अब्दुल्ला खान राजपूत के लिए ये अकीदा माना है और जो उन्होंने अपनी किताब हिकायत औलिया में सजाया है, लिखा है ना? तो अब ये काफिर हुए या नहीं हुए? अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इबारत क्या है? इबारत ये है कि देवबंदियों के ये एक बुजुर्ग हैं अब्दुल्ला खान राजपूत, और इनके घर जब कोई तावीज लेने जाता, तावीज, तो ये बता देते हैं कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का। और जो ये कहते हैं थानवी जी उसमें पूरी वजाहत भी करते हैं कि जो वो कह देते हैं, यानी जो आप कह देते हैं वही होता, उसके अलावा नहीं होता। यानी आपने लड़का कहा तो लड़का ही, लड़की कहा तो लड़की। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी को लड़की कह दिया तो लड़का हुआ, समझे, और लड़का कह दिया तो लड़की हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जो वो कहते हैं वही होता है। अब जवाब सुनो जी, सुनाइए। आपका ऐतराज इस इबारत पर है कि ये कहा जाता था कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का। हाँ जी, ये ऐतराज है आपका? भाई औरत के पेट में है, अभी माल बाहर नहीं है। जब नबी ये इल्म नहीं जान रहे हैं कि तेरे पेट में क्या है, नबी को ये इल्म नहीं मालूम, अल्लाह ताला ने ये इल्म हुजूर को नहीं दिया, अब्दुल्ला खान राजपूत को कैसे उस इल्म का पता चल गया? मैं समझ रहा हूँ। अब मुझे जवाब देना है। जी, अब मुझे जवाब देना इस इबारत का कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का। हाँ, मुसलमान सुन रहे हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे पास। मैं रिकॉर्डिंग हो रहा, बहुत अच्छी बात है, और आप जो है रिकॉर्डिंग करो। मैं चाहता भी हूँ कि मेरी बात रिकॉर्ड हो, हाँ, जो है औरों तक ये पहुँचे। जी। मुझे इससे वो नहीं कि भाई मेरी बात कोई ना सुने, इसलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई जो बंदा ऑनलाइन है वो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? हाँ, सुन रहे हैं वो आपकी बात। अब जवाब सुनो। इबारत ये है कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का। अरे इबारत ये नहीं है, इबारत को समझो ना कि जब कोई औरत उनके यहाँ, जब कोई आदमी कोई औरत उनके यहाँ तावीज के लिए जाता, जी, जब किसी के यहाँ हमल ठहरता और कोई उनके यहाँ तावीज के लिए जाता, तो वो कह देते थे कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का होगा। हाँ, बस ये उन्हें इल्म कैसे हुआ कि इसे लड़की है या लड़का है? ये इल्म कैसे हुआ? जब नबी को ये इल्म नहीं तो अब्दुल्ला राजपूत को कैसे हुआ ये इल्म? इसी का तो जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, बताइए। अगर कोई हामला औरत उनके पास जाती, हाँ, तो वो यूँ कहते थे कि जा तुझे लड़की होगी या लड़का। ठीक है, यही आपका एतराज है, इसका जवाब आप सुन लें। अच्छा, सुनाइए। जा तुझे लड़की होगी या लड़का, तो यहाँ दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लड़की और लड़का दोनों। नूर हसन भाई क्या आपको गलत समझ रहा है? उनका कहने का मतलब ये है कि लड़की होती थी तो लड़की होती थी, और बोलते थे कि लड़का होगा तो लड़का ही होगा। ये मैंने समझा भी दिया, मैंने इनको समझा भी दिया इससे पहले
کہ جو وہ کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا, اس کے برعکس نہ ہوا. میں نے انہیں سمجھا بھی دیا. ہاں میری بات سنو, اب جواب سن لو. آپ کا میں نے جو ہے بڑی تسلی کے ساتھ میں سوال سنا ہے. اب اسی طرح جو ہے آپ بھی جواب سن لو, پھر جو ہے آپ جواب سننے کے بعد میں پھر آپ جو ہے کوئی دوسرا اعتراض ہے, اسی اعتراض کو پھر دوبارہ کرنا. تو اول تو یہ ہے کہ یہاں مطلق یہ نہیں کہا کہ آپ کے لڑکی ہوگی. بالکل مطلق, بالکل مطلق ہے. اس عبارت سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا, یہاں دونوں ہاں جو ہوتا تھا وہی وہ بتاتے تھے. کیا تجھے لڑکی ہوگی تو سیدھا بھائی, تو بالکل سادہ جواب ہے. کوئی عورت آتی تھی تو وہ کہتے تھے جا تجھے لڑکی ہوگی, تو اسے لڑکی ہوئی. کسی کو کہہ دیا تجھے لڑکا ہوگا تو اسے لڑکا ہی ہوا. یعنی جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوا, اس کے علاوہ نہیں ہوا کچھ. میں نے یہ بات آپ کو ریپیٹ میں سنو, اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوا. سنو تو میں نے بھی سمجھایا تھا ریپیٹ کر کے, اور مسلمان تمہاری آواز کو سنیں گے اور تمام دیوبندی بدعقیدے بھی سنیں گے. اپنی عزت کو بچاؤ اور یہ دعوے مت کرو کہ دیوبندیوں کے طرف سے میں جواب دوں گا. جب اتنا علم آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے کس بات کے؟ میرے پاس اتنا علم ہے کہ اگر آپ جو ہے ہم جو باری سے اور بخاری تک پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میں آپ کو پڑھا دوں گا. ایسا ہے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری بخار آتا ہے, ان کو آتی نہیں بخاری. ارے یہ جواب سننے کی بے عشق محبت پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار, ان کو نہیں آتی بخاری. یہ کہا نا عقل سلیم رکھو, علم الحمدللہ عقل سلیم ہے تبھی ہم یہ بات کر رہے ہیں. نہیں یہ اتنی سادہ عبارت جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے پاس کیا علم ہے؟ ہاں سمجھائیے. آپ کے پاس جب اتنی سادہ عبارت کو نہیں سمجھ سکتے. جی جناب سمجھائیں. ہوگی یا لڑکا, دونوں میں سے تیسری قسم کون سی ہے وہ بولو. ارے یار دماغ کہیں بیچ کے آ گئے کیا؟ دماغ کہیں بیچا ہوتا تو نہیں ہے نا. نہیں آیا, میں الحمدللہ بہت ہوش و حواس سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم دونوں طرف بات گھما رہے ہو. میں کیوں جواب دے رہا ہوں بالکل سیدھا. یہ بہت آسان سیدھا جواب ہے, عام آدمی سمجھ سکتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یار مکار دیکھے ہو تو دیوبند میں دیکھ لو جا کے. اگر مکار دیکھنے ہو تو دیوبند میں دیکھ لو جا کے. مکار اگر تم میں اتنی صلاحیت اور علم ہوتا تو ان عبارتوں کو آپ جو ہے بغیر سنیے دوبارہ میں سمجھاؤں آپ کو, میری بات کو غور سے سنیں. میں سمجھ گیا. سنیے دیوبندیوں کے مولانا عبداللہ نے یہ کہا کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا, تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. سنو اب آگے کی ابھی بات سن لو. تھانوی جی آگے کیا کہتے ہیں, آگے کی بھی سنو. دیکھیے بھائی جان, اب میں ان کو آگے کی اس کے آگے کی بھی عبارت سنا دوں, ان کے بھیجے میں بر نہیں رہی ہے. تھانوی جی یہاں لکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا, اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. کیا کہہ رہے ہیں تھانوی جی؟ جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. اور یہ میں نے ان کو پیچھے ریپیٹ کر کے دوبارہ سمجھایا 2 3 بار, مگر ان کے بھیجے میں یہ بات گھس نہیں رہی ہے. اور ایک اور سنیے, اب ایک اور بات بتاؤں, ایک عبارت اسی کتاب کی ایک اور عبارت آگے کی بتاؤں میں آپ کو. سنیے اب قبروں سے اٹھ کر بھی مجھ سے آ کے مناظرہ کریں. قبروں کا ذکر مت کر. قاسم ننوتوی کو دارالعلوم دیوبند تک کھچڑتا ہوا لاؤں گا. قاسم ننوتوی کو قبر سے دارالعلوم دیوبند تک کھچڑتا ہوا لاؤں گا. قبروں کی بات مت کر. جتنے تمہارے پاس علم ہے قبروں کی بات مت کر. دارالعلوم دیوبند تک کھچڑتا ہوا لاؤں گا قاسم ننوتوی کو, مردے کو. قبر پجاری ہو, آپ سے بات نہیں ہو سکتی. قاسم نانوتوی بہت دور کی بات ہے. ابے جاہل کی اولاد, جب تیرے اندر اتنا علم نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, دعوے کیوں کر رہا ہے کہ میں جواب دوں گا؟ لگا کافر پہ فتوا. اشرف تھانوی کافر ہوا کہ نہیں ہوا عبداللہ خان راجپوت کے لیے یہ عقیدہ مانتے ہوئے؟ اور سن لے آگے کی بات سن, آگے کیا لکھتا اپنی کتاب میں. کہتا ہے بالکل نہیں ہوا. یہ علم غیر ہے. یہ دیکھ, میں نے تجھے یہی پوچھا تھا کہ میں اگر غوث اعظم کے لیے مان رہا ہوں تو میں جب کافر ہو رہا ہوں, اگر کوئی اور کسی اور کے لیے مانے تو وہ بھی کافر ہوگا کہ نہیں؟ تو نے کہا ہاں ہوگا. تو لگا تھانوی کو پر فتوا. اس میں علم غیر ہے. لگانا تھانوی کو پر فتوا. کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تھانوی کیسے کافر نہیں ہوگا؟ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ دیوبند کا جاہل ابن ابو جہل, عتبہ اور شہبہ کی ناپاک اولاد, یہ ابھی آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا, اور بڑی صلاحیت کے ساتھ
बात करने की कोशिश कर रहा था और छोटा छाता दे रहा था कि हाँ मैं बात करूंगा और जवाब दूंगा। इसके बस की बात नहीं है ये जवाब दे सके। और ये क्या देगा? दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा जना नहीं जो इस गुनाहगार नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में चैलेंज है इस गुनाहगार नूर हसन का, पूरी दुनिया में चैलेंज है। दूध पिलाया है तो तेरी अम्मा ने अगर तुझे हलाली नुस्खे से पैदा किया है तो थानवी को काफिर साबित कर। तुम्हारी माँ ने बोल कहाँ काफिर है, सही मुनाजरा करके दिखाओ। बोल के वो काफिर है। क्यों क्यों काफिर है? इसलिए बोलेगा कि जो इल्म रसूलुल्लाह के लिए तूने तस्लीम नहीं किया वो इल्म अब्दुल्ला राजपूत के लिए थानवी कबूल कर रहा है, इसलिए वो काफिर है। और तूने कुरान पाक की आयत पढ़ी? अभी तूने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तूने कुरान पाक की आयत पढ़ी या नहीं पढ़ी? अच्छा एक और बात, तूने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी थी कि औरत के पेट में क्या है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ रब जानता है, अल्लाह जानता है, तो ये क्या है? अबे जाहिल, अबे कुछ पढ़ते पढ़ाते हो कि नहीं? या दारुल देवबंद की लैटरीन नहीं साफ की है तुम लोगों ने? अरे उलूम की देवबंद की लैटरिन साफ करने का अगर तुम जैसों को मौका मिल जाए तो अल्लाह। अबे जाहिल उल्लू का बट्टे, पहले कुछ पढ़ लिख ले उसके बाद में कुछ बात करो, दावे करना बंद कर दे, वरना नूर हसन जैसा मिला ना तो इससे भी बदतर कोई हालत करेगा तेरी। तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तुम असल अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने दूध पिलाया है तभी तुझसे बात कर रहा हूँ और तेरी पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ। आए कोई निकल के मेरे सामने। अरे तेरा बाप यहाँ इकबाल मौजूद है। अबे नजदीकी नाजायज औलाद मौजूद है यहाँ, हरामी काफिर, मुझसे मुनाजरा कर। अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ। तूने अभी कहा था कि ये इल्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया किसी को, रसूलुल्लाह नहीं जानते कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का। अब मैंने थानवी की किताब से थानवी की इबारत से ये बात साबित की कि उसने अब्दुल्ला खान राजपूत के लिए तस्लीम किया है, तो वो काफिर क्यों नहीं है? काफिर है ना? तुम मुझे तीसरी किस्म काफिर बोल उसे तीसरी किस्म साबित करके बता दो। दोनों किस्मों में से कोई एक होता है। अबे नजदीकी नाजायज औलाद, बात यहाँ बिल्कुल ठीक है। एक तरफ मैं अगर वो अकीदा रखूं तो मैं काफिर हूँ और वो भी रसूलुल्लाह के लिए, और तेरा थानवी काफिर अब्दुल्ला खान राजपूत के लिए अगर तस्लीम करे तो वो काफिर नहीं होगा। ये कहाँ का नजरिया है? तुम्हारे पास इल्म है इबारत समझ? अबे नजदीकी नाजायज औलाद, इल्म है तभी तो तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे इबारत क्या है? अरे इल्म है तभी तो तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरा थानवी कह रहा है कि जो आप बता दिया करते थे, जो आप बोल दिया करते थे वही होता था, यानी उसके बारे में कुछ ना हुआ। अगर किसी के लिए लड़की का कहा तो लड़की ही हुई, किसी के लिए लड़के का कहा तो लड़का ही हुआ। तेरा बाप थानवी खुद कह रहा है हिकायत औलिया में, पढ़ लेना। ऊपर तेरे बाप ने क्या कहा है? पढ़ लड़का पढ़ ले पहले। मतलब क्या है? तुम क्या समझ रहे हो इसको? मैं ये समझ रहा हूँ कि जो तूने रसूलुल्लाह के लिए इनकार किया, जिस इल्म का रसूलुल्लाह के लिए तूने इनकार किया वही इल्म तेरा थानवी। चल अजान हो गई, बाद में बात करूंगा तुझसे, ठीक है? अरे क्यों, मैं मुताबिक कर लेना अच्छे से, तो उसके बाद बात। शफी भाई अजान हो गई है, बाद में इंशाल्लाह बात करता हूँ, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हजरात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों, सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आका के चाहने वालों आप तो कर लो।